Hello, everyone. So the prelims is approaching, and I hope that you all are indulged and involved into intense revision, solving the mocks, and all of you are having a single common objective of clearing the prelims this year. And obviously, I'll wish you all the very best for this. However, I am here with a very short video, a conversational type of video, but a one-way dialogue because this is a recorded session. I want to discuss few things with you which I think that you people should understand and you need to take care of them before going to the prelims, and what things are important in these last 15 to 20 days before the actual examination. The idea behind this video is because I have got a lot of messages from the students कि सर लो स्कोर आ रहा है मॉक्स के अंदर, ऑल इंडिया टेस्ट दिया था उसमें स्कोर नहीं आ रहा है, रिवीजन क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, मॉक्स और देने हैं नहीं देने हैं, पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करने हैं नहीं कर रहे हैं. And this is true for almost every teacher. I discussed this issue with other faculties also, and they are also getting this message, and this is not something new trend. It is repetitive. Every year this happens, and it happens with every aspirant. When we were the aspirants, तो हमारे साथ भी यही होता था कि प्रीलिम से एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले वो जो दिमाग के अंदर एक वो साइक्लोन घूमता था और वो बवंडर आता था, तो अपने को समझ में नहीं आता था कि क्या करना है, अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अगले 15 से 20 दिन के लिए. So this is the only objective. This is the sole motivation for this video. I'll try that it will be a short video, but then obviously you people know that when we start talking, तो उसके बाद फिर टाइम वाइम सब भूल जाते हैं हम लोग. So the thing is that this is the time, this is the period of self doubt. Okay, लास्ट 15 से 20 दिन में जितना ज़्यादा सेल्फ डाउट एक एस्पिरेंट के मन में आता है, एंड दैट इज स्पेशली ट्रू बिफोर प्रीलिम्स. मेंस से पहले ये सेल्फ डाउट नहीं आता है. दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट. So those who will be writing the mains for the first time, they will understand this. Those who have already written the mains, they know this. मेंस से पहले और प्रीलिम्स से पहले जो मेंटल स्टेटस होता है, दैट इज कंप्लीटली कॉन्ट्रास्ट, दैट इज कंप्लीटली ऑपोजिट. प्रीलिम्स वो एग्जाम है जिससे पहले सबसे ज़्यादा डर लगता है, और दूसरा जो एक प्रेशर, मेंटल प्रेशर आता है, वो आता है फिर इंटरव्यू से पहले. मेंस में उतना नहीं आता है बिकॉज द नेचर ऑफ एग्जाम इज डिफरेंट. सो हेयर वी आर टॉकिंग ऑब्वियसली ओनली अबाउट द प्रीलिम्स. दिस इज वेरी नेचुरल दैट इट विल कम टू योर माइंड बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स. ये वो वाला टाइम है जब सब कुछ लगेगा कि सब कुछ भूलते जा रहे हैं, सब कुछ चीज़ें फेड होती जा रही हैं, सारी चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन जब मॉक्स दे रहे हैं तो उसके अंदर अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है, एंड देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सो इसी के लिए एक एडवाइस, कुछ एडवाइस हैं जो आपको शायद हेल्प कर सकती हैं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई एम हियर. बट माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑल ऑफ यू. प्लीज लिसन टू इट केयरफुली एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. My question is that, do you people really need an advice? Are you people not grown enough to understand that what things should we take care of before these in these 15 to 20 days before prelims? Try to think on it. What does your common sense say? Common sense आपको क्या बता रही है कि आपको क्या करना है 15 से 20 दिन में? That is why I start this discussion with a very basic question. Read this question and try to think on it, that what advice would you give to your younger self in the same situation? Just have a role reversal. Suppose you are a teacher and I am a student. Or just think that आपका कोई छोटा भाई बहन जो है वो आपसे पूछने आ रहा है, some of your roommates, some of your friends, you are not the UPSC aspirant or you are not going to write prelims this year. So take yourself out of this zone first. पहले ये सोचो कि आपको प्रीलिम्स नहीं लिखना है इस बार, ठीक है? तो वो मेंटल प्रेशर पहले तो हटा दो. उसके बाद सोचो कि अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि स्कोर नहीं आ रहा है, रिवीजन क्या करना है पता नहीं लग रहा है, बहुत सारी टेंशन है, समझ में नहीं आ रहा होगा कि नहीं होगा, मॉक्स के स्कोर को अगर मैं रेफरेंस लेके जाऊँ पिछली कट ऑफ के साथ, तो वो कट ऑफ और मेरे मॉक्स के स्कोर में प्रेजेंटली बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत टेंशन का टाइम चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है. अगर कोई आदमी आपके पास ऐसी प्रॉब्लम लेकर आएगा, क्या सजेशन देने वाले हो आप उसको? फॉर एग्जाम्पल, योर पेरेंट्स आर नॉट फ्रॉम द यूपीएससी बैकग्राउंड, लेट अस अज्यूम सम ऑफ, कुछ लोगों के होंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ योर पेरेंट्स और योर फैमिली मेंबर्स वुड नॉट हैव बीन फ्रॉम द यूपीएससी बैकग्राउंड. आप यही सारी प्रॉब्लम उनके सामने लेके जाओगे तो मम्मी पापा क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे ना कि ठीक है, कुछ नहीं होता, मतलब चिल, टेंशन मत लो, बेसिक चीज़ें रिवाइज कर लो, बाकी देखा जाएगा जो होगा. दैट इज द ओनली एडवाइस ना यार. थिंक ऑन दिस क्वेश्चन. यू पीपल डू नॉट रिक्वायर एनी एडवाइस फ्रॉम मी और फ्रॉम एनी वन एल्स. द ओनली एडवाइस, जस्ट वन एडवाइस इज that be rational, use your common sense and trust yourself. Fine.
आर यू गेटिंग इट? जब भी कभी कोई ऐसा डाउट आए तो पहले ये सोच लो कि आप क्या एडवाइस देने वाले हो किसी और को, क्योंकि आप दूसरों को बहुत बार अच्छी एडवाइस दे पाते हो, वही एडवाइस खुद के ऊपर अप्लाई कर लेना बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं आपके बारे में। So what are those few basic questions which I have received from students? इनके अलावा भी अगर there are some questions which are left, so obviously I am always open to the calls. Please contact with me, contact with your teachers, जो भी आपके mentors हैं उनसे बात कर लेना उन पर. But there are few important questions which I want to discuss. The first question is low scores in the mocks. Again, I received a lot of messages. कोई कह रहा है सर my score in last 3 to 4 tests which I have given is just revolving around 60 to 65. कोई कह रहा है 70 75, कोई कह रहा है 80 85. तो द थिंग इज कि अगर हमारे पिछले 4-5 मॉक्स में कंसिस्टेंटली एक लो स्कोर आ रहा है तो हम कैसे मान लें कि हमारा इस बार प्रीलिम्स क्लियर होने वाला है? क्योंकि प्रीलिम्स की कट ऑफ तो हमने हमेशा देखी है कि 85 90 95 100 105 के आसपास गई है पिछले 5-6 साल में. अब here again, just use your common sense and think. First, let me know what is the objective of your test. When we say that you have to give your marks, what is the sole purpose of that mark? Is it to analyze your marks? Have we ever told you that try to analyze your marks? Or we have always told you that try to analyze the explanations, try to analyze your attempt, that how are you attempting a particular question, how are you attempting a particular test. If the issue is of overthinking, underthinking, revision की कमी है, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन का इशू है, या फिर OMR भरते वक्त कुछ गलती हो जा रही है, what are the issues? So all these issues are not related to marks directly. These issues are related to how you people are attempting your marks. तो पहले तो ये चीज समझो कि पिछले 3-4 मॉक्स जो आपने दिए हैं, वो मॉक्स में जो आपका लो स्कोर आया है, अगर आपको लग रहा है, what is the reason for that? And in this particular thing, I will advise those who are going to analyze last 3 to 4 mocks if they have given, और अगर कोई आज मॉक दिया उसका एनालिसिस करना है, always talk about the potential. See the potential difference. What do I mean by this potential difference? Try to identify those questions जो कि आप ठीक कर सकते थे पर वो ठीक नहीं हुए. क्यों नहीं ठीक हुए? देयर कैन बी n number of reasons. For example, lack of revision. I knew the concept, but at that point of time I could not remember the concept. I knew the fact, but when I was attempting the test I could not remember that fact. I knew the fact, but when I was attempting the question I could not deduce some conclusion out of that fact. ये भी हो सकता है. So that is basically application of memory. First issue is memory, दिमाग में नहीं आया. सेकेंड इशू इज दिमाग में आया बट एप्लीकेशन ऑफ मेमोरी में प्रॉब्लम हो गया. थर्ड इशू कैन बी मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा था लेकिन मैंने कुछ और समझ लिया. फोर्थ इशू कैन बी दैट बहुत ज्यादा गट फील आ रही थी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा, लेकिन फिर इवेंचुअली कुछ तो हुआ, मैंने कुछ तो सोचा या मैं कुछ नहीं सोच पाया और लास्ट में आते आते मैंने डी लगा दिया और फिर जब मैंने आंसर की देखा तो वो आंसर सी ही था. ठीक है. और नॉट करेक्ट को करेक्ट वाला ऑप्शन मार्क कर दिया, या सम टाइप ऑफ सिली मिस्टेक्स, इश्यूज रिलेटेड सिली मिस्टेक्स, इशू रिलेटेड टू अटेंशन, इशू रिलेटेड टू रिविजन. Identify the number of questions which you could have attempted on the basis of existing knowledge base. I am 100% sure that easily you will get around 5 to 6 questions. बहुत आसानी से ऐसे 5 से 6 questions मिलेंगे. Take just 4 questions यार, just 4 questions. अगर आपको 4 questions भी ऐसे मिल रहे हैं जिसमें you had a potential that you could have marked them correct but you did some mistake, these 4 questions means around 10 marks. 5 to 6 questions will mean around 10 to 15 marks if we take negatives into account. And all of us know most of the students who do not clear prelims every year, the marks which they get and the difference between the cutoff and those marks, that range is always around 10 to 15 marks. किसी का 2 मार्क्स से रुक जाता है, किसी का 4 मार्क्स से रुक जाता है, किसी का 8 10 15. मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो विद इन 15 मार्क्स के रेंज में होते हैं, और वो 15 मार्क्स का जो रेंज है वो सिर्फ और सिर्फ इन इश्यूज की वजह से होता है जो हमने बात की, लैक ऑफ रिवीजन, मिस इंटरप्रिटेशन, अटेंशन एंड ऑल दोज एस्पेक्ट्स. फाइन. सो लो स्कोर्स पे फोकस नहीं करना है, फोकस करना है कि पोटेंशियल क्या था उस टेस्ट में. इफ द पोटेंशियल वाज अराउंड टू गेट 10 to 15 more marks,
with the basis of your existing knowledge, then it means that you are on the right track. अब प्रॉब्लम बस ये है कि इन 10 से 15 मार्क्स को एक्चुअली कन्वर्ट कैसे करना है. आर यू गेटिंग इट? वो कैसे कन्वर्ट करना है उस पर भी हम बात करेंगे. इज दिस क्लियर? पहले तो स्कोर्स को देखना भूल जाओ, पोटेंशियल को नापना शुरू कर दो. Second question which I am getting is that now, because just around 15-20 days are left, not 20, just 18 to 19, and take it 15, effectively 15 days are left. 3-4 दिन तो बर्बाद होंगे ही होंगे, वो सबको पता है. So effectively 15 days are left. In these 15 days, should we focus more on the mocks or should we focus more on revision? Why this question is a valid question? बिकॉज वेन वी टॉक्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट की स्कोर्स कम आ रहे हैं तो इसका मतलब कि पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब कि अटेम्प्ट में गलतियां हो रही है, इसका मतलब कैन आई थिंक दैट इफ आई अटेम्प्ट मोर नंबर ऑफ मॉक्स सो माई अटेम्प्ट एफिशिएंसी विल इंक्रीज? यस, डेफिनेटली इट कैन इंक्रीज. ट्रू. बट द सेकेंड इज दैट वी हैव टू कंपेयर दिस एस्पेक्ट विद द पोटेंशियल ऑफ इंक्रीजिंग द मार्क्स विद द हेल्प ऑफ रिविजन. और इसमें भी हमने बात करी कि लैक ऑफ रिवीजन वुड बी द लार्जेस्ट रीजन दैट व्हाई यू आर नॉट एबल टू स्कोर रिलेटिवली हायर इन दोज मॉक्स. तो माय सिंसियर एडवाइस टू ऑल ऑफ यू इज, in these last 15 days, I think that this is not the time to attempt more mocks, because the benefit which you expect out of attempting more mocks, those benefits will be easily overcome by the benefits which you will get through revision. So now focus more on revision. अभी रिवीजन का टाइम है, अभी मॉक्स अटेम्प्ट करने का टाइम नहीं है. मॉक्स अटेम्प्ट करने का टाइम निकल चुका है पिछले 1.5-2-3 महीने के अंदर. ठीक है. हाँ, प्रैक्टिस की जहां तक बात है, दैट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अटेम्प्टिंग अ मॉक्स, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस. प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन जरूरी है, उस पर भी अभी हम आगे बात करेंगे, राइट. बट मॉक्स, अटेम्प्टिंग द मॉक्स मीन्स दैट यू आर गिविंग अ मॉक्स, लेट्स से 100 क्वेश्चंस इन वन स्ट्रेच. वो करने की मुझे, मेरे हिसाब से अभी जरूरत नहीं है. जस्ट फोकस ऑन रिविजन. अब रिवीजन पे फोकस करना है तो फिर अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट वन शुड रिवाइज, व्हाट शुड बी द रिवीजन स्ट्रैटेजी. बहुत सारी चीजें हैं, क्या रिवाइज कर लेंगे हम इन 15 दिनों में? अगेन, जस्ट यूज योर कॉमन सेंस. द क्वेश्चन इज दैट व्हाट टू रिवाइज. देर आर, वी ऑल नो दैट देर इज अ स्टैटिक पोर्शन, then there is also a current affairs portion, then there are also the mock tests. If you people have made some notes out of these tests, which I hope so, कि कुछ तो notes बनाए होंगे जब टेस्ट एनालाइज कर रहे थे. These are the 3 areas कि इसको अब किसको रिवाइज करना है. Here also again, just apply your common sense. I am of the firm belief that, for example, syllabus is divided into 2 major dimensions. One is few areas are conceptual in nature, few areas are factual in nature. इंसान ज्यादा क्या भूलता है? फैक्चुअल चीजें भूलता है ना. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट फिजिकल ज्योग्राफी, so I expect that those who have done physical geography, those who have understood the conceptual part of geography, तो वो concepts नहीं भूलेंगे. If I ask you that what is a tropical cyclone, हो सकता है मुझे डिफाइन नहीं कर पाओ, बट यू नो व्हेन एमसीक्यू विल कम, देयर विल बी ऑप्शंस. व्हाट आर द कंडीशंस रिस्पांसिबल फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन? यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दोस कंडीशंस. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एयर मास? यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई इट. व्हिच कैन बी द इंपैक्ट्स ऑफ द गल्फ स्ट्रीम और द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूरोप? यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई इट बिकॉज you have understood the concepts, you have already revised those concepts. एग्जाम वाले दिन अपने आप दिमाग में हिट करेगा. हो सकता है आज ना हिट करे बिकॉज टुडे यू आर इनटू अ लॉट ऑफ मेंटल प्रेशर, बट ऑन द डी डे, ऑन द एग्जामिनेशन डे, व्हेन यू विल बी नोइंग कि आज तो करना ही है अटेम्प्ट, वो कॉन्सेप्ट्स अपने आप दिमाग उसको खींच लेगा. सो डू नॉट वरी अबाउट द कॉन्सेप्ट्स गिवन द फैक्ट दैट यू हैव रेड, यू हैव रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स मेनी टाइम्स. ठीक है, कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे. दैट मीन्स द फैक्चुअल पार्ट इज द की. A factual part may try to identify that which are the areas. For example, when we talk about the acts of modern history, Charter Act, Government of India Acts, on all those acts. So वो एक factual part है. Questions do come from it. You should revise it. Similarly, if we are talking about polity, so for example, fundamental rights, constitutional bodies, or some other important articles, which you think all of us know that which are the important parts, which are factual part. तो उसको रिवाइज कर लो, है ना. अब हेयर ऑल्सो आई अग्री दैट देयर विल बी अ लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी. देयर माइट बी अ स्टूडेंट हु नोज दैट ही और शी इज वेरी गुड इन फंडामेंटल राइट्स. तो उसको अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो वो फंडामेंटल राइट्स पे अपना टाइम क्यों वेस्ट करे, वो किसी और चीज पे कर ले. सो ऑब्वियसली देयर विल बी अ लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी. हेयर वी आर जस्ट डिस्कसिंग द जनरल थिंग्स. Similarly, when it comes to geography, so Indian geography is a factual part. So obviously the maps are important.
So you can go for some maps, India as well as the world maps. You can see some videos on YouTube that which are the current, which are the locations which are in news currently, maybe globally or within India. ठीक है, जब भी खाना खा रहे हो या कुछ टाइम बच रहा है तो उनको वीडियोस को देख लो, उससे कुछ लोकेशंस याद हो जाएंगी. यू कैन ओपन योर मैप्स, यू कैन सी द माउंटेन्स, रिवर्स ट्राइब्यूटरीज. वी हैव डिस्कस दिस इन QIP क्लासेस ऑल्सो कि ये रिवर्स ट्राइब्यूटरीज, माउंटेन्स, लोकेशन ऑफ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. हर साल हम देखते हैं कि क्वेश्चन इसमें से आता है, तो ये वाला फैक्चुअल पार्ट कर लो. करंट अफेयर्स की ऐसी सेम इज ट्रू फॉर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी एंड करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, तो गवर्नमेंट स्कीम्स को रिवाइज कर लो. इकोनॉमी के अंदर अगर जैसे कॉन्सेप्चुअल पार्ट, फॉर एग्जांपल व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ द इंक्रीज और रिड्यूसिंग द रेपो रेट्स ऑन द इन्फ्लेशन, व्हाट विल बी द बॉन्ड यील्ड. अब ये सारा जो है कॉन्सेप्चुअल पार्ट है. दैट आई अंडरस्टैंड कि दैट आई होप दैट यू पीपल वुड बी नोइंग इट, यू पीपल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यू विल बी एबल टू मेक, यू विल बी एबल टू come up with the right answers. But then the factual part of economy, ओके, यू कैन गो फॉर दैट कि भाई किसी चीज की बास्केट के अंदर कौन कौन सी कमोडिटीज हैं, है ना, तो वो वाला चीज आप रिवाइज कर सकते हो. गवर्नमेंट स्कीम्स के क्या पैरामीटर्स हैं, क्या टारगेट्स हैं, उसको आप रिवाइज कर सकते हो. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दैट द फैक्चुअल पार्ट नीड्स टू बी रिवाइज्ड. Conceptual part you can ignore as of now. If there are few concepts which you want to revise, then you can revise it. This is fine. उसके बाद अगली चीज आती है टेस्ट एनालिसिस, कि जो सॉल्यूशंस आपने, जो मॉक्स आपने जो है टेस्ट में आपने बनाए हैं, उसके जो एक्सप्लेनेशंस हैं. तो अब यहाँ पर भी आई विल से एटलीस्ट ट्राई टू गिव एटलीस्ट वन साइकिल, दैट इज वन रिविजन फॉर द टेस्ट्स, because you people have invested in these tests for last 2 to 3 months. You people are continuously investing in these mocks, you have made notes, and I am of the firm belief कि जिस भी इंस्टीट्यूट का हो वो, but if you have attempted this them and seriously attempted them, seriously you have made notes, उसका भी फायदा होगा. तो don't let that मेहनत, मतलब उस मेहनत को वेस्ट मत होने दो यार. तो मतलब एक रिवीजन, एक साइकिल एटलीस्ट जो है वो टेस्ट का दे दो. ठीक है, ज़्यादा नहीं करना है. इसमें हमने चीज़ें बहुत डिस्कस करी हैं, बट दोज आर, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इजी टू लर्न, ओके, बिकॉज वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द फैक्चुअल पार्ट. So what to revise, these are the areas which you need to revise, and then you have to obviously identify your own weaknesses also which you need to revise. The last thing is attempting PYQs, that now should we attempt PYQs or not. So here I discuss one important thing, that there is a difference between attempting the mocks and practicing the questions. Here I advise you not to go for full length mocks. अगर एक आध किसी को देना है तो दे सकते हो, doesn't matter. मतलब इतना रिजिड नहीं होती है कोई भी चीज़, कोई भी स्ट्रैटेजी या एडवाइस, ठीक है, वो सब्जेक्टिविटी में दे रहा हूँ. बट इन जनरल you need to focus more on revision. But the thing is, if you people are not writing the mocks now, तो ऐसा ना हो कि अगले 15 से 20 दिन में you people come out of the zone of reading, interpreting and attempting the questions. वो extreme situation में नहीं लाने देना है. So that means you people require a continuous practice also. For example, if I am a sports person and if I am having a tournament, let's say few days later, तो till now I was into intense physical activities. मैं लगातार प्रैक्टिस कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा वर्कआउट कर रहा था. When my sports tournament actually is coming, so now I will be more focused on my stretching. I will be more focused on my flexibility of body. अगर मैं बॉलर हूँ तो मैं कुछ कुछ बॉलिंग प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन मैं पूरा दिन जो है वो गेंद नहीं फेंकता रहूँगा, बिकॉज इट माइट लीड टू सम इंजरीज, इट माइट डेवलप सम टेंशन, इट माइट डेवलप सम स्ट्रेन माई बॉडी. तो मुझे वो चीज़ें मैनेज करके चलनी है, ठीक है. तो इसीलिए प्रैक्टिस करना है. तो दैट PYQs आर द बेस्ट वे टू गो. सो यू कैन अटेम्प्ट PYQs. बहुत सारे PYQs आप लोगों ने पहले अटेम्प्ट कर लिए होंगे. अटेम्प्ट देम अगेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस रिड्यूस नहीं होगा. पहली बात, मॉक्स में तो कॉन्फिडेंस ही रिड्यूस होता जा रहा है. तो इस सिचुएशन में आना ही नहीं है, इस विशियस साइकिल, इस विशियस ट्रैप में हमने पढ़ना ही नहीं है. हम अपने आप को खुद बोलेंगे हाँ मतलब ऑल इज वेल, ऑल इज वेल. अटेम्प्ट किया हुआ क्वेश्चन दोबारा अटेम्प्ट कर रहे हैं और हम खुश हो रहे हैं, वाह 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 बहुत अच्छी बात है. यही करना है इस टाइम पे. दिस इज एग्जैक्टली वॉट यू हैव टू डू, ठीक है. तो रैंचो बाबा झूठ नहीं बोल के गए हैं, तो करना है वही. अटेम्प्ट PYQs, एंड इसमें भी बहुत इंटेंस अटेम्प्ट की नहीं, पूरा पूरा दिन PYQs लेके गए हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ अटेम्प्टिंग द PYQs? वन, टू फील हैप्पी. सेकंड, it will not allow you to come completely out of the zone of attempting the questions.
ठीक है, ग्रीजिंग बॉडी की होते रहनी चाहिए। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ ग्रीजिंग यू कैन गो फॉर सम पीवाईक्यूज की अभी बैठे हैं तो चलो ठीक है, आधा घंटा कुछ पुराने पीवाईक्यूज देख लिए, कल को कुछ 15-20 मिनट कुछ पुराने पीवाईक्यूज देख लिए, 1 घंटा पीवाईक्यूज देख लिए, उनको देख लिया, ठीक है, उनको सॉल्व कर लिया, सो दैट योर हैबिट ऑफ रीडिंग द क्वेश्चन, योर हैबिट ऑफ इंटरप्रेटिंग द क्वेश्चन, योर हैबिट, योर जो इनटेंजिबल चीजें हैं वो सारी चीजें इंटैक्ट रहें व्हेन यू विल बी राइटिंग द प्रीलिम्स ऑन 25th May. That is the objective, and with this objective you people will obviously yourself understand कि कितने PYQs attempt करने हैं. Is this clear to everyone? Fine. The last leg is, which is the sole purpose of this video. ठीक है, ये सारी चीजें we know. Last thing is obviously, trust me, last 15 days before prelims examination is more of a mental game and less of an academic game. ठीक है, ट्रस्ट दिस थिंग, एकेडमिक्स करना है, छोड़ना नहीं है. आई एम आस्किंग यू, आई एम सेइंग अ रिलेटिव कंपैरिजन. दैट इज व्हाई आई हैव मेड माय ओन ग्राफ. दिस इज अ ग्राफ, आई विल एक्सप्लेन दिस, इट विल जस्ट टेक 2 minutes एंड यू विल अंडरस्टैंड. देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है. Presently you are in this phase, and as I have written that this entire period of around 15 to 20 days is a period of self doubt. So this is the timeline and here is the learning and performance. Presently you are in this phase where you are experiencing a lot of anxiety, tension, low scores etc. सारे issues जो है दुनिया भर के अपने दिमाग में आ रहे हैं. होता क्या है, इससे पहले अपने को फील गुड हो रहा था, और परफॉर्मेंस वाज रिलेटिवली बेटर, बट इन दिस पीरियड आवर परफॉर्मेंस, वी फील दैट आवर परफॉर्मेंस हैज गॉन डाउन. एज सुन एज वी एक्सपीरियंस दिस फीलिंग, तो उसके बाद अपने को लगता है प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन अब तो करना है, कुछ भी करेंगे प्रीलिम्स तो क्लियर करना है. तो हम अपने वर्किंग आवर्स बढ़ाएंगे, 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, पेड़ उखाड़ना शुरू कर देंगे. तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ करना शुरू कर देंगे. अप्लाई योर माइंड. अदरवाइज व्हाट विल हैपन, यू विल गो फॉर अ वेरी इंटेंस रिविजन. That is also true that it will dramatically increase your learning and performance. That is also true. अगर आज आपने पॉलिटी पूरा पढ़ लिया एक दिन के अंदर 20 घंटे लगा के, तो ऑब्वियसली पॉलिटी के क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाएंगे कल. बट द इशू इज you will experience a complete burnout before 25th May. Your peak will reach, you will reach early peak, and this is a very dangerous situation because you will be at your peak performance, let's say around 21st or 22nd May. उस दिन तो एग्जाम नहीं है. अब आपने इंटेंस रिवीजन करके सारा सिलेबस मान लो अगले 7-8 दिन में खत्म कर दिया, फिर अगले उसके 7-8 दिन में आपको क्या करना है, आप वो दोबारा रिवाइज नहीं कर पाओगे उसी इंटेंसिटी से, बिकॉज यू हैव जस्ट रिवाइज दोस थिंग्स. तो इंटरेस्ट कम हो जाएगा, यू विल नॉट बी हैविंग दैट पैशन. So that is how automatically this early peaking will be dangerous and it will further lower down your performance on the last day of the examination. ये नहीं करना है, ठीक है. That is why you need to follow this green curve from this date onwards. Now you have to go for the active revision, that is true, but it has to be gradual. एकदम गधा मजदूरी शुरू नहीं करनी है, that has to be gradual. And with this you need to focus on this aspect, mental control. Everything will be guided with the help of your mental condition, your mental stability. Try to understand it कि ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना रिक्वायर्ड है वही पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, ताकि पीक जो है वो 25th को आए, उससे पहले ना आए. So in next around 8 to 9 days, I would advise go for active revision, fine, but have the mental control intact with you. ठीक है, सब लोग सेम सिचुएशन फेस कर रहे हैं, तो जिस नाव में सब लोग हैं उसी नाव में हम भी सवार हैं. डूबेंगे सब डूबेंगे, बचेंगे सब बचेंगे, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है. दिस इज वेरी नॉर्मल, वेरी नेचुरल. एंड इन द लास्ट 1 week द ओनली गेम इज a pure mind game. It is not an academic game anymore. And trust me, with utmost responsibility, with all of my experience as aspirant, as teachers, with talking to number of other students also in last a lot of years, मैं ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूँ, फॉरगेट अबाउट एकेडमिक्स, रिविजन सब छोड़ दो. अगर जस्ट इफ यू आर हैविंग अ प्रॉपर मेंटल बैलेंस बिफोर द प्रीलिम्स, इन द लास्ट 1 week ऑफ प्रीलिम्स, लास्ट के 5-6 दिन में अगर आपका मेंटल बैलेंस सही है ना, ये जो गैप है, दिस गैप 10 to 15 मार्क्स, 10 से 15 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ आपका मेंटल बैलेंस इंक्रीज कर देगा आपके मार्क्स के कंपैरिजन में. आर यू गेटिंग इट? I am not talking about the cutoff. So for example, if you were in tension,
and you scored only 40 marks in prelims, let's say, और अगर आप टेंशन में नहीं थे, you followed this thing, you understood this thing in a matured manner, तो प्रीलिम्स वाले दिन सेम एकेडमिक नॉलेज, सेम नॉलेज बेस से आपके 40 प्लस 10 to 15 मार्क्स आएंगे, 50 to 55। क्लियर एग्जाम तो दोनों में नहीं हुआ, लेकिन आई हैव टेकन अ रेफरेंस ऑफ 40 मार्क्स, राइट। बट इन द बिगनिंग ऑफ दिस वीडियो वी डिस्कस दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट कि मैक्सिमम जो कट ऑफ से बच्चे पीछे रहते हैं, दैट इज द डिफरेंस ऑफ अराउंड 10 to 15 मार्क्स। वो 10 से 15 मार्क्स तो सिर्फ मेंटल स्टेबिलिटी से आ जाएंगे यार, अगर आप कंफ्यूजन, अगर आप सेल्फ डाउट नहीं रख रहे हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, fine। So this is the only thing which I wanted to convey, and that is why in the beginning I told you there is no ऐसा कोई रॉकेट साइंस वाला एडवाइस नहीं है विच एनीवन कैन गिव यू। जस्ट यूज योर कॉमन सेंस, जस्ट थिंक व्हाट एडवाइस वुड यू हैव गिवन टू योर यंगर सेल्फ और समवन एल्स इफ यू वुड नॉट हैव बीन गिवन द प्रीलिम दिस ईयर। बस वही जनरल एडवाइस अपने को फॉलो करना है, नॉर्मल रिवीजन शेड्यूल हमने फॉलो करना है, जो हमने बात करी करंट अफेयर्स, स्टैटिक वर्सेस फैक्चुअल पार्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी की पार्ट्स, वो वाली चीज़ें रिवाइज करनी है। लेकिन इनके साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बी मेंटली स्टेबल। इफ यू आर मेंटली स्टेबल, this is the benefit which you will be reaping on 25th May, mark my words। 10 to 15 marks का गैप है, बहुत बड़ा गैप है, right? So that is all from my side। if you still have some doubts, please feel free to ask me, you can write it in the comment section also, many of you are having my number also, so you can directly contact me। so this is the last thing, so thank you very much and all the very best। प्रीलिम्स को फोड़ो, प्रीलिम्स के बाद अपन मेंस की बात करेंगे कि मेंस में क्या करना है, ठीक है। उसके लिए भी अपने पास एक सेट स्ट्रैटेजीज होंगी, सेट चीज़ें होंगी कैसे कैसे आगे करना है विद टाइमलाइंस, तो वो हम तब बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए फोकस ऑन योर प्रीलिम्स और बाकी सारी मेंटल टेंशन जो है उनको हटा दो, राइट। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।